Okay. Uh, so I will share my screen. Uh, Prajot, now you can start your presentation and share the screen. Okay. I am getting message that post disabled participant screen sharing when I'm clicking on screen share option. Okay, okay. Hmm, I'm doing this. Prajot, you can start your presentation. But I'm not able to share the screen. You are not Oh, able to share your screen. Okay, post wait. I'm post disable to post disable participant screen sharing is coming. okay. Okay, I'm doing. Yes. Now you can share your is screen. Okay. Go. Good evening, everyone. My presentation topic for today is practical lessons from life of Chhatrapati Shivaji Maharaj. In this presentation, I will yeah. So in this presentation, I will go you through 10 life lessons which we learn from Chhatrapati Shivaji Maharaj. We all know how great King Chhatrapati Shivaji Maratha kingdom extended almost whole of India, and his life has always been an inspiration for me. And there are a lot of things to learn from his life. So moving on to the first life lesson. Okay, the first lesson is knowledge is everywhere. So when Shivaji Maharaj was small, uh, his father Shahaji Maharaj was a Jagirdar in Bijapur kingdom, and he lived with his mother in Pune. So his mother taught him different lessons from Bhagavad Gita, like Ramayana, Mahabharata, and all that. And these lessons instilled in him a lot of high values, like building, leadership skills, and all those things. He learned a lot of lessons from this lessons from this stories from Gita, especially about Mahabharata and Ramayana. And also his mother, his uncles, and all taught him fighting skills and everything. Now all these lessons which he learned in his childhood came handy while he was fighting to build Swarajya later in his life. So so the message here is that whatever knowledge we get throughout our life, whatever small thing we get through our seniors, our parents, uh, uh, means people we meet, or whatever we learn through even our failures, maybe our interview failure or whatever it is, every knowledge will count. Take everything as a learning experience.
everything, every skill, whatever advices you get, everything will count at some point in your life. So we should take everything as a learning experience. And we should and one thing is that we should always read books and try to gain a lot of knowledge, and try to um, teach ourselves different skills, because everything counts in life. Next life lesson is dare to dream big. Now Shivaji Maharaj was son of a jagirdar, so but still he dared to dream big. Still he dared to make a kingdom for his own people. So he did not have sufficient manpower. He was alone when he started. He did not have resources, did not have funds, did not have any contacts with any powerful ruler or alliance and anything like that. But he had only one thing in mind, that I have this dream of Swarajya. We want our own people to rule on ourselves. We don't want any foreigners to rule. So this self belief was there in him. So so even without anything, he dared to dream that big dream. Most important thing he had was his self belief. And then whatever came on his way, he he was ready to face it. He chose his own battles. Now in this, the message for us is that never limit yourself. Most people limit themselves based on their current circumstances and their past experiences. Like I can't get 1 lakh salary or 2 lakh salary job. I don't have that skills and all that things. So never limit yourself. Always dream big. Even if it is out of your reach, you should dare to dream it and then work hard to make it possible. You should have that self belief in you. Moving on to third life lesson. Third life lesson is live with a purpose. Always find your calling. Uh, Shivaji Maharaj found his calling early in his life. He knew that he wanted his own people to rule us. So he knew that this was his purpose of life. He wanted to spend his life fighting for Swaraj and build that kingdom of their own. So he convinced, he went into the jungle in the Malvan village and convinced people that they have the strength, that it is time to fight for our own own Swarajya. And he motivated those people. He instilled the faith and belief that it is possible if we try. Uh, so that purpose was there in him, and that purpose kept him going, kept him motivating throughout his life. He spent his whole life for that purpose. So message for us is that in this that we should always find our purpose in we should always find a purpose in life, and like our calling in life. Some people have that calling in life. For example, someone may want to be a cricketer or actor or anything. He might love it. That is your actually calling in life. You should not give up on it. You should try hard for it. That is the purpose of your life. Moving on to the next life lesson. Next life lesson is team building and leadership skill. Now, when Shivaji Maharaj uh, thought of building his kingdom, the Swarajya, he went to the villages of Malvan and he interacted with the common people over there. Uh, he interacted with common people because he had that faith that these people have the strength and they want it to happen, but they don't have they want a leader who can motivate them, who can instill the faith in them. So he befriended people his age, teenagers and young people, and formed the army of Malvans who could fight for this purpose. Plus he motivated those people. He even used to eat with the Malvans just to strengthen the bond. Strengthen the bond that I am just one of you. I am like we are all equal. So all this gave those people faith that this man can
can make it possible for us, and they went along with him. They also he made him a part of his journey, and not like he's a leader and they are the not like that. Gave them the confidence to make it possible. So one message for us is that we should that if we are together, if we work as a team, then anything is possible. We can change the system, we can do anything, we can we can do anything that we want if there is unity and we work as a team. For leaders, we there is a message that um, the team for leaders, they should respect all their team members equally. They should motivate them, and if they have enough motivation, the team members will work in your favor. Yeah. So moving on to the next slide. Wisdom and presence over power and aggression. Now, yes, Shivaji, in many situations, Shivaji Maharaj did not resort to always war and violence. He took decisions from his mind, like what can be the right approach for it. Should I need to use my force and all? So there were some examples of it, like escape from Agra. Now there was one instance in his life where Aurangzeb had invited him to visit Agra. So Shivaji Maharaj uh, sensed that there is some danger, but again he accepted the invite and went to Agra to meet him along with Sambhaji Maharaj. He was the Sambhaji Maharaj was child back then, 9 years old. So they went to Agra, but when they reached the palace of Aurangzeb, they came to know that it is just a trap. The Aurangzeb then trapped them in his prison, then jailed them in his prison, and for several days they were jailed over there. So Aurangzeb's plan was to deport them to Kandahar in Afghanistan. But Shivaji Maharaj did not lose his patience. He uh, he he during that time in jail, he befriended some people over there, and he noticed everything, what is happening, who all are coming, whatever is happening, and the plan of escape was always going in his mind. How can I get out of this? So he was always focusing on the solution rather than regretting or pondering on the problem. uh, Once what happened, he fell ill, and or rather he made a drama of being ill, and the doctors were all called, and in 3 to 4 days he was well. So what he did, um, he ordered that like he expressed his wish that the doctors and Brahmins and all the poor people around must be given fruits and sweets, as he is well now. So he wanted to celebrate it. So in that palace, the sweets were made and fruits were all taken outside the prison to the poor people. So there, during the initial days, everything was very strictly checked, all sweets and fruits and all. But later on, since it was routine, the guards did not bother to check it. So Shivaji Maharaj sensed opportunity in this, and one fine day, with the help of his friends whom he had befriended, he um, he and his son Sambhaji Maharaj sat in one of those fruit baskets and got deported out of the prison. And then in about 1.5 to 2 months, they reached Raigad. So this is how he escaped from the Aurangzeb's prison and reached Raigad. So basically, what he did, that he focused on the solution and remained calm even in that situation. One more example is that of strategic release of Father Shahaji Maharaj. In this, once Shahaji Maharaj was
imprisoned by Adil Shah. So Shivaji Maharaj did not use force and all to fight Adil Shah in that situation. He knew that it was just the beginning of his kingdom. He knew that he may be defeated. So he went to Shah Jahan in the north, and he talked to him, like he tricked him that if you release my father, I will. If you release my father, I will. I will support you with my army for your future, um, future like fights and all. So this was just a trick. So he made actually even Shah Jahan was his enemy, but he made alliance out of his enemy, and in that way he released his father to the contact without losing a single man from his army. So that was his tactics to remain calm and take decisions from his mind and wisdom. So the message for us is that always focus on solutions in times when life really gets tough. We are um, we get angry, we regret, we ponder on the problems and all that, and we resort to unhealthy methods like alcohol and all. So your simple message is that always resort to always think about the solution, and what are your options and what can you do without getting maximum damage. Moving on to the next slide. Futuristic mindset, planning, and strategy. Now, Shivaji Maharaj uh, was during that time in his emperor, uh, Portuguese and British were coming over India. So he was able to see that Portuguese and British may even come over his Maratha kingdom and to the sea. So he was able to see the future that they are beginning to infiltrate our land. So he during that time only he built the navy. So he is also called as the father of navy because he built a he is the first king to build the navy. Um, so basically he was able to see the future and foresee the future and build a navy which prevented Portuguese and British to attack Konkan, and even one that those districts were attacked where soon they soon were freed from them because of the navy. So then this was one example of his strategy and mindset and his futuristic thinking. So one message for us would be that we should always think about the future and take decisions. We should make long-term plans for it. We should make long whenever we plan. We should make long-term plans. Moving on to the next slide. Okay. Prepare for negative scenarios in advance. Now there is one incident in Shivaji Maharaj's life, um, which is Afzal Khan's incident. Um, what happened is one day the Bijapur Sultanate was very fed up of Shivaji Maharaj. So they appointed Afzal Khan to kill him. Now Afzal Khan uh, knew that it is not that much easy. So he written a letter to Shivaji Maharaj stating that I want to do settlement with you and I want to meet you. So um, so Shivaji Maharaj Shiva but he made a written a letter to Shivaji Maharaj that I want to make settlement with you and I want to meet you. But that was a trap. That was a trap, and it also told in the letter that no weapons or no men should be there from both the sides. So this trap he had made to kill Shivaji Maharaj. And but Shivaji also knew Shivaji also sensed that it might be a trap, but he came to meet him.
Now, in that fort of Panha, some fort was there. He came to they both met. Now, Afzal Khan was a tall and a huge man, um, much heighter than Shivaji Maharaj. So he when they came, he told him to hug him, and they both hugged each other. And uh, when they were hugging each other, that time he took out a sword, like a small sword, like a knife, and then jabbed in the back of Shivaji Maharaj. Now, Shivaji Maharaj was already prepared for the situation beforehand. He came with, while coming, he had put one metal jacket inside his coat, inside his regular dress, and he was not any the knife did not jabbed him. So and also while he was hugging, he also came prepared. There was one weapon which during that time they put it in the fingers. So he pulled out that weapon and then struck at the kidney of the Afzal Khan near the stomach, and then he pierced it very hard, and Afzal Khan was killed there and there. So and later on, the Shivaji's men who were at the foothill of that fort, they even killed the other men of Afzal Khan and conquered that fort. So this incident tells us that we should always be prepared for negative scenarios in life. To give you an example, like if I'm setting up my own business, then I should always be prepared if the for the failure, but I should go for it. It doesn't mean I shouldn't go for it, but I should be prepared for the negative scenarios and in life as well in advance. So preparation is the important key for anything, but at the same time also take risk. Moving on to the next lesson: bouncing back from setbacks. Hmm. In one incident in Shivaji Maharaj's life, he had to give. He lost to Jai Singh of Rajput kingdom, and he had to give about his 23 forts in the Treaty of Purandar. He had to sign 23 forts. Um, Now, these were very hard and fought. It might be very depressing time for him, but he did not lose hope. Within a span of some 2 to 3 years, he conquered more than 100 fort within those few years. So this simple incident teaches a very good lesson for us that we should always bounce back from setbacks. Setbacks can be anything like job loss, business failure, marriage, or whatever it is. We should always bounce back from it and come back stronger. We should not lose hope in any situation in life. Moving on to the next slide. Respect for all religion. This is one more lesson which we learn from life of Shivaji Maharaj. Respect for all religion, religious sentiments and people. Now, Shivaji Maharaj, although he was a Hindu king, he also had many Muslims as army chiefs and also as personal bodyguard. And in his army, there were many about 50, about 40 to 50% as well Muslims. He always was tolerant towards other religion as well. He um, whenever he raided any kingdom, he never destroyed any mosque or Qurans or anything. He never attacked any women or children in that kingdom. He always respected the sentiments of other religions and returned the women and the children with dignity. Uh, yeah, and never destroyed any mosques. So this is a very important lesson in today's life, where there is so much religious animosity. So we should always, and in a country like India, where there are so many religions, we should always live in harmony, and we should respect each other's religion and religious beliefs. This is a very important lesson for us. Moving on to the next slide.
Okay. Next lesson is about kindness, high morals, and good character. Shivaji Maharaj was very kind. This is evident from many things that he did, and respecting women, respecting people. So he always fought for the people, for that purpose of Swaraj, and not for his personal glory or pride. He always treated women with respect, and even the prisoners of war. Uh, Whatever he never tortured those prisoners of war. He always treated them with respect. Uh, he always like I said, he always treated uh, other religions with utmost respect. He had always high values, even at the peak of success and power. One example of it, when he had conquered Maharashtra, immediately after that, he did not declare himself as king. He declared himself as king several years later as a strategic uh, mo- uh, a strategy. Uh, just to show the people that I am the king, I am the great, like that he did not do. He did not declare himself as king, king directly. He always considered himself as very equal to others, and he even have had many friends from his early childhood days, the marvels like Tanhaji and all that. So he always had good relations with people. He always had his high morals and a good character. One message for us in this is that even though you reach at the top of success, you have a lot of power, or you are very rich, even that time we should not lose our basic values of kindness. We should treat people with respect, um, and we should always have our morals intact. Like if yeah, like a moral should be always high, uh, and our character should be always kind. Moving on to the next slide. Conclusion. Now, one thing that hurt me is that even though he was such a great king, there is not enough coverage in schools and colleges about him. So I think that there should be enough coverage on the life of Shivaji Maharaj in history books. This can inspire a lot of children to be kind, and shape their character in future. Chhatrapati's life need to be shared among children from early age, which will instill in them his qualities. Uh, so yes, all this lesson will always inspire us, always, always make us want to be like him, and want to be like him. And yes, we are very grateful that we got such a great king back then. Thank you. Thanks for listening. Great, Sandar. Okay, wonderful presentation, Prajot, and the way you convey the messages of Chhatrapati Shivaji Maharaj Ji, it 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 was really nice to listen, and now we'll have a questions around, and if anyone has any a question, he or she can ask to Prajot. Hi Prajot, one Hi. question from my side. Having studied the life of Shivaji Maharaj, what do you think would be one thing he would want to change in our country if he was alive today? Yeah, one thing he would like to change in the country is, I think, maybe hear a lot of reports on
religious intolerance. So I think he would like to change that, and he would like to see us all together as one. Great answer. Thank you. Thanks. And anyone else who want to ask question to Prajot? So okay, now I have one question for Prajot. Prajot, echo, according to you, what was the best quality of Chhatrapati Shivaji Maharaj? I think best quality was his kind nature, because that was why he was most liked by the people. Because yeah, all kings have great kingdoms and all, but that what made him different from them. He was always been kind natured, and he had his high morals. Like I said in my presentation, that what remains with people, maybe politician or a king. That is most important thing. Okay, thank you, Thank you. Prajot. Yes, so now our second participant is Rahul Sarolia. So Rahul, now you can share your screen. Okay, sir. Thank you very much. So my screen is visible. Hello. Yes, yes, yes. You are audible. Okay. ठीक है. Welcome and so my topic is internet censorship. इंटरनेट सेंसरशिप वो होता है जो हम डिजिटल सोशल मीडियाज और जो भी डिजिटल या किसी वेबसाइट पर हम जाते हैं तो उसके लिए एक संस्था या फाउंडेशन होता है जो हमारी हर एक्टिविटीज पर नजर रखता है. ओवरव्यू इंटरनेट सेंसरशिप. इंटरनेट सेंसरशिप जो फर्स्ट टाइम बनाया गया था वो एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए बनाया गया था, क्योंकि उस टाइम ये जब बना था तो ये बच्चों के लिए मतलब चिल्ड्रंस एंड जो चिल्ड्रंस के लिए हार्मफुल ना हो इसलिए बनाया गया था, क्योंकि कभी कभार चिल्ड्रंस सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर लेते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए. तो इसलिए ही फर्स्ट टाइम सेंसरशिप चिल्ड्रंस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, लेकिन उसके बाद उसको आगे के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज में इंप्रूव किया गया और अब ये हर एक्टिविटीज को सेंस करता है. बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री. फर्स्टली ये सबसे पहले अमेरिका में स्टार्ट हुआ था, जो बच्चों के लिए ही इसको फर्स्ट टाइम टाइम सेंस के लिए बनाया गया था, ताकि बच्चे किसी हार्मफुल चीजें ना देख सके. और फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज इंटरनेट सेंसरशिप. इंटरनेट सेंसरशिप वो होती है जो कुछ भी इंटरनेट पर हम करते हैं वो सेंस करता है. अगर कुछ गलत एक्टिविटीज को वहां पर प्रतिबंध भी लगाया जाता है. यही इसका एक मेन कारण रीजन है कि ये जो कुछ गलत एक्टिविटीज हो रही है या कुछ ये पॉलिटिकल
या किसी भी प्रकार से सोशल लॉजिकल के लिए ये हार्मफुल है, तो ये ऐसी वेबसाइट या ऐसे प्लेटफॉर्म को प्रतिबंध लगा देता है। जैसे सऊदी अरब एंड यूनाइटेड अरब अमीरात, चाइना, तनिष्का, उज्बेकिस्तान जैसी कंट्रीज में ये एक तरह से बिल्कुल ही बैन है। वहां पर बाहर की कोई भी प्लेटफॉर्म को एक्टिविटीज या प्लेटफॉर्म को चालू नहीं किया गया। सिर्फ वहां पर अगर उनका कोई प्लेटफॉर्म है उसी पर बनाया जाता है। जैसे चाइना से आप भली भांति परिचित हो, वहां पर कोई भी इंटरनेशनल सोशल मीडिया नहीं चलता, जैसे यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो अब फर्स्टली क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इंटरनेट सेंसरशिप? सही शब्दों में, इंटरनेट सेंसरशिप किसी गलत एक्टिविटीज को रोकता है जो या तो सरकार द्वारा उसे प्रतिबंध लगाया गया हो, या किसी वो समाज के लिए सही नहीं है इसलिए उसे भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और कुछ अलग डिफरेंस होता है, जैसे मैन शुड बी इंटरनेट सेंसरशिप। इंटरनेट सेंसरशिप क्यों जरूरी है? इनफैक्ट इंटरनेट सेंसरशिप एक गवर्नमेंट के हाथ में होता है। जैसे चाइना में आप कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म को यूज नहीं कर सकते। अगर करते भी हो तो आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, क्योंकि आज का जो डिजिटल मीडिया का जमाना है, उसमें अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हो तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा बोल सकते हो। और यस, एंड नेक्स्ट, कुछ कंट्रीज ऐसी है जहां पर इंटरनेट सेंसरशिप के नियम अलग है, वहां पर उनके लिए रूल अलग है। जैसे अमेरिका के लिए, अमेरिका में हर वेबसाइट फिल्टरिंग होती है और वहां पर हर स्टेट के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं। वहां के सभी जो सर्च इंजन है वे रजिस्टर है यूनाइटेड स्टेट के लिए, यूनाइटेड स्टेट यानी कि जो वहां की सरकार है, और वहां पर पायरेटेड कंटेंट ही सर्च कर सकते हैं। और वहां पर कुछ साइटों को अगर अगर ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है और आप उसकी कंप्लेन करते हो तो वे वहां पर ब्लॉक भी हो सकते हैं और बैन हो सकते हैं। नेक्स्ट कंट्री जैसे चाइना से तो हम भली भांति परिचित है। वहां पर कोई भी बाहर का प्लेटफॉर्म नहीं चला सकता। सिर्फ गवर्नमेंट हर पूरा इंटरनेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, और गवर्नमेंट हर एक पीपल की हिस्ट्री पर नजर रखती है। और वहां पर सभी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ब्लॉक्स हैं, जैसे यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, ट्विटर एंड अदर प्लेटफॉर्म्स। जैसे क्यूबा में एक प्राइवेट इंटरनेट 2011 में स्टार्ट हुआ था, जो ओनली एक ही इंटरनेट प्रोवाइडर है, और जो वहां की सभी पॉपुलेशन उसका यूज नहीं कर सकती। सिर्फ वहां पर मैन पीपल्स एंड कैफे में आप इंटरनेट यूज कर सकते हो, और वहां पर गूगल या अदर सर्च इंजन भी यूज नहीं कर सकती, वे भी वहां पर बैन है। नॉर्थ कोरिया में एक अपना ही अलग ही गवर्नमेंट है, वहां पर कुछ ऑफिशियली अनऑफिशियली नहीं होता। सिर्फ वहां पर जो मोस्ट पॉपुलर या बड़े अधिकारी है वही इंटरनेट या सोशल मीडिया का यूज कर सकते हो। और अगर वहां पर कोई
ट्रेवलिंग या टूरिस्ट जाता है वो भी वहां पर इंटरनेट यूज नहीं कर सकता, सिर्फ हॉस्टल्स या इंटरनेट या कुछ अदर कैफेज में ही यूज कर सकता है। ग्रेट ब्रिटेन में एक टेलीकम्युनिकेशन सर्विस इन पर नजर रखती है, और जो इलीगल वेबसाइट से या जो बच्चों के लिए हार्मफुल है उनको ब्लॉक कर दिया जाता है, और ना ही वे और उन पर मॉनिटरिंग की जाती है। और ईरान में भी आप बाहर के सोशल प्लेटफॉर्म्स को यूज नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी हम ऐसे प्लेटफॉर्म्स को भी यूज कर लेते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा बैन किए गए हैं। उनका एक अदर बाईपास इंटरनेट होता है, वो जैसे वेब प्रॉक्सी सर्वर या और अदर प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर आप उनका यूज करते हो तो आप उन ब्लॉक वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन अगर आप उन ब्लॉक वेबसाइट को एक्सेस करते हुए पाए जाते हो तो ये इलीगल होगा, और आपको मतलब इलीगल है ये। आप आपके आप पर ये कार्रवाई भी हो सकती है इसके खिलाफ। हाँ, सबसे पहले जो सेंसरशिप बनाई गई थी वो चिल्ड्रन के सेफ के लिए ही बनाई गई थी। और जहां तक है आज की बात डिजिटल दुनिया हो रही है, तो उसके लिए बच्चों के लिए एक सेफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या जैसे इंटरनेट सेंसरशिप है, एक बच्चों के लिए काम अलग से करनी चाहिए। ये एक मतलब यस, इंटरनेट सेंसरशिप होनी चाहिए, लेकिन आज के टाइम में सरकारें एक अलग ही इंटरनेट सेंसरशिप का उपयोग कुछ गलत एक्टिविटीज के लिए भी करती है। जैसे सरकार चाहती है कि जो हम चाहे वही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दिखाए, जैसे कि अभी भी भारत में भी पिछले दिनों ये बहुत चर्चा में रहा था, और चीन में ये पर्टिकुलरली है ही, और अदर कंट्रीज में भी है। ऐसी ही हमारी गवर्नमेंट्स भी इसको लागू ये पता नहीं करने जा रही है, कर रही है, या ये ऐसा है, इसका तो अभी पूरी तरह से है नहीं। लेकिन क्योंकि सरकार एक इंटरनेट प्लेटफॉर्म एक ये है, आप अगर तुम कुछ आपको सही नहीं लगता तो आप आवाज उठा सकते हो। आखिर इंटरनेट सेंसरशिप की नीड क्यों पड़ी? इसके लिए एक इंटरनेट सबसे पहले जो स्टार्ट हुई थी वो बच्चों के लिए ही स्टार्ट हुई थी, पेरेंट्स और टीचर्स के कहने पर, जो अब कुछ अलग डिफरेंस मोड पर आ गई है। कभी कभी इंटरनेट का उपयोग इतना घातक हो जाता है कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ आ जाते हैं। अब ये गवर्नमेंट के खिलाफ, अब वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट सही कर रही है उसके खिलाफ है, या गवर्नमेंट जो गलत कर रही है उसे सही तो उसके खिलाफ है। अब अगर सही के लिए पब्लिक आई है तो ये सही है, अगर गलत के लिए आई है तो ये गलत है। एक सोशल इंटॉलरेंस भी कभी कभार सामने आ जाता है, जो तो इसलिए इंटरनेट सेंसरशिप उनको बैन या ब्लॉक कर देती है, या इंटरनेट ही बंद कर देती है। ये इंटरनेट सेंसरशिप कभी कभार हार्मफुल हो जाती है किसी ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेशन या कंपनीज के लिए, एंड हार्मोनिंग फैमिलीज एंड चिल्ड्रंस के लिए ये हार्मफुल हो सकती है, एंड एक एवरी पर्सन के लिए भी इंडिविजुअल ये हार्मफुल हो सकती है। लेकिन इसका कोई पर्टिकुलर नहीं है कि हार्मफुल ही हो। जैसे इंटरनेट, ये एक एग्जांपल है जो
एक क्रांति आई थी, उस क्रांति में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान रहा था। इसका मेरे अभी नाम याद नहीं आ रहा कौन सी क्रांति थी। हमारा क्या ओपिनियन होनी चाहिए अगर हम इंटरनेट का विदाउट सेंसरशिप यूज करें तो ये एक हार्मफुल सिचुएशन होगी, जैसे सोशल इंटॉलरेंस हो जाएगा। कभी कभार कुछ सोशल मीडिया पर भी ऐसे लिंक्स या ऐसी खबरें आ जाती है जो फेक होती है या किसी नए या किसी हमले के लिए या कुछ फेक न्यूज के चलते आ जाती है जो एंड सेकंड, इंटरनेट सेंसरशिप के बेनिफिट्स क्या है। अगर इंटरनेट सेंसरशिप नहीं होगी तो उसके बेनिफिट्स क्या हो गए। इसके बेनिफिट्स तो कम है लेकिन लॉस ज्यादा है, इसीलिए हमें फ्रीडम, लेकिन इंटरनेट सेंसरशिप के लिए एक फ्रीडम एक्सप्रेशन भी होना चाहिए हर पीपल के लिए। उसे अपनी एक आवाज उठानी, मतलब उसे अपना ओपिनियन देने के लिए होना चाहिए, चाहे वो सरकार के खिलाफ हो या किसी भी पर्टिकुलर के लिए हो। अगर वो सही है तो उसे चांस मिलना चाहिए अपनी बात कहने का। summary and conclusion, we can take and internet will be one। अगर हम इंटरनेट को वर्ल्ड वाइड देखें तो ये हर एक पीपल के लिए, अगर हम इंटरनेट सेंसरशिप को नहीं लाएंगे तो ये हार्मफुल सिचुएशन होगी। लेकिन एक ये और गुड वे है हर एक चीज को कंट्रोल में रखना, इसलिए ये सेंसरशिप बनाई गई थी जो, और आज के टाइम में ये इतनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर चीज डिजिटल हो गई है, उसके लिए कंट्रोल और मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। ग्रेट राहुल जी, शानदार। थैंक यू। ओके, थैंक यू राहुल, बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन थी आपकी, और ये डिफरेंट टॉपिक था और काफी कुछ नई बातें जानने को मिली आपकी इस प्रेजेंटेशन से। तो अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो राहुल से पूछ सकता है। मेरा एक क्वेश्चन है राहुल जी से, ठीक है। अगर किसी ने इंटरनेट का गलत यूज किया है, ठीक है, पास्ट में, तो क्या उस उनकी जो डेटा है गवर्नमेंट के पास जो है, क्या वो गवर्नमेंट उनका गलत उपयोग भी कर सकती है क्या? नहीं, जैसे कि गवर्नमेंट उसका गलत उपयोग नहीं करेगी, सिर्फ गवर्नमेंट उस चीज को देखती है अगर कुछ देश के लिए हानिकारक हो रहा है, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो हानिकारक है लोगों के लिए, तो उस पर सरकार इतना ज्यादा ध्यान नहीं देती। सिर्फ गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर चीज के लिए देखती है ताकि देश में और कंट्री में शांति बनी रहे, उसका मेन पर्पस यही होता है। ताकि कुछ, क्योंकि कभी कभार कभी आतंकवादी जैसे भी संगठन, क्योंकि आज का डिजिटल जमाना है तो आतंकवादी भी आजकल डिजिटल टाइप में हमला करते हैं। जैसे किसी फाउंडेशन या कोई बड़ी संस्था उसको हैक करके उसका डाटा चुरा लेते हैं उस टाइप में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो उसका गलत उपयोग करेगी। जी ओके, ठीक है।
ओके तो राहुल, मेरा भी एक क्वेश्चन है आपसे कि आपको जी जी आपको क्या लगता है कि हमारे देश में ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स हैं जिससे हमारे देश के बच्चे हार्मफुल साइट्स यूज ना कर पाए? ऐसे रूल तो है हमारे देश में जो बच्चे एक्स एक बार आप दोबारा रिपीट कर सकते हो क्वेश्चन? मैं क्या ये दे- हमारे देश में ऐसे स्ट्रिक्ट रूल हैं जिससे कि देश के बच्चे हार्मफुल साइट्स को यूज ना कर पाए? अच्छा अच्छा, जहाँ तक मुझे पता है अभी तक कोई ऐसे स्ट्रिक्ट रूल तो नहीं है जो बच्चे इन जो उनके लिए हार्मफुल साइट है उन्हें एक्सेस कर ले। हाँ, कुछ ही दिनों पहले मतलब 1-2 साल पहले सरकार ने ये नियम लाया था कि जो हार्मफुल साइट से उन्हें ब्लॉक किया गया था, लेकिन अब भी पता नहीं कि ये नियम कहाँ कैसे लगे और क्या अभी कोई स्ट्रिक्ट नियम लाए हैं या नहीं, इसके लिए तो कोई जानकारी है नहीं कि हार्मफुल साइट के लिए कोई स्ट्रिक्ट रूल आए हैं। आप पिछले दिनों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर ये चर्चाएं अभी जोरों पर थी, जो सरकार ने मतलब इनका केस सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा है। यस, जी बहुत थैंक यू। ओके, थैंक यू राहुल। तो अब हम जी तो अब हम अपने लास्ट पार्टिसिपेंट को इनवाइट करते हैं। उनका नाम है अमित। ओके ओके, तो थैंक यू गिव मी दिस। तो मेरा टॉपिक था कि माइंड पावर, ठीक है। तो क्योंकि देखिए, तो मेरा जो यानी जो भी है, सो मेरे स्क्रीन के सामने है। ओके, सो मैं उसको शेयर करता हूँ आपको स्क्रीन, राइट। तो स्टार्ट। ओके, ठीक है। तो ये है मेरा पावर, मीन्स मेरा जो भी टॉपिक होगा तो इसी पर डिपेंड है, ऑल टू ऑल मेरी पूरी की पूरी टॉपिक। जैसा कि आप जो देख रहे हैं, ठीक है, स्क्रीन के सामने पूरा का पूरा मेरा फ्रेम। तो ये तो यही है जो कि मेरा जो रियल नॉलेज है और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो माइंड है वो हम कोई भी काम करते हैं तो अपनी माइंड और अपनी बॉडी से। अगर माना जाए कि अगर हमारे सामने कुछ भी है, कोई भी चीज है, तो उस चीजों का सॉल्यूशन हमारे माइंड के पास पहले से है, बट हमारी बॉडी उस चीजों को पाने के लिए काम नहीं कर रही है। और अगर हम अपने माइंड को कहते हैं कि हाँ आप उस काम को कर सकते हैं, तो वो माइंड फिर हमारी बॉडी कहती है कि नहीं नहीं, ये काम हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन जब हम खुद पे एक बार और एफर्ट देते हैं, तब हमारी बॉडी उस काम को करने के लिए एक्टिव होती है। और उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपना पूरा का पूरा ये नक्शा बनाया है। क्योंकि देखिए, जिसमें कि ऊपर में है ना बेस्ट, BEST, बेस्ट ये चीज है कि अगर हमारे सामने कोई भी चीजें आती है तो हमें वहां पे रुकना चाहिए। मतलब बिफोर बेस्ट, मतलब बिफोर ब्रेक, मतलब हमें वहां पे रुकना चाहिए। फिर एक्सेल, फिर हमारा नेक्स्ट चीज होगा कि अगर हमने वहां पे रुका तो हमें वहां पे रुक कर एक्सेल वाली फीलिंग लानी है, मतलब अपने सांस को ऊपर लेना है, जिस कारण से हमारा माइंड शांत हो जाएगा उस मोमेंट में। और फिर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि हमारे आसपास में क्या हो रहा है। यानी एज फॉर सी स्माइल एंड स्टिच, अगर हमारी बॉडी उस दौरान कांप रही है या वो फियर में है, तो हम
देखेंगे कि हम हमारे बॉडी या हमारे आसपास में क्या चीजें हो रही है। और टी फॉर टेम्परेचर, फिर हम लोग देखेंगे कि हमारे आसपास का माहौल कैसा है, फिर हमारा बात करने का तरीका क्या है। तो ये जो बेस्ट है वो काफी यूनिक चीज है जो कि मेरे माइंड में आया हुआ था, हमने जो सोचा। और उसी के साइड में है गॉबलेट, राइट, ठीक है क्या। तो ये जो गॉबलेट है वो भी काफी यूनिक फॉर्म है, क्योंकि हम लोग का जो भी लाइफ बना हुआ है ये गॉबलेट पे बना हुआ है। मीन्स जी फॉर ग्रोथ, हम लोग चाहते क्या है कि अपने लाइफ में ग्रोथ पाए, राइट, हमेशा। और ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हमारा एक ही मकसद होता है कि हमें लाइफ में ग्रोथ मिले, फिर हमें उस ग्रोथ को पाने के लिए अवसर मिलते रहे, यानी अपॉर्चुनिटी। बी फॉर ब्लेसिंग एंड बी फॉर ब्लेसिंग एंड बी फॉर बिलीव। अगर हम लोग खुद पे बिलीव रखते हैं तो हमारे आसपास जो भी चीजें होगी वो हमारे लिए एक यूनिक चीज होगी, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि सेकेंड में बहुत चीजें नई नई आती है, और वो उस चीजों को एक अलग ही ढंग से हमारे सामने लाकर रखती है। एंड एल फॉर लर्निंग एटीट्यूड, अगर हमारे पास किसी भी चीजों को सीखने की पावर है तो हम उस चीजों को बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। ई फॉर एनर्जी लेवल, अगर हमारा एनर्जी बहुत ही यूनिक तरीके से काम करता है, अगर हम लोग मान ले कि अगर हम लोग किसी माहौल में बैठे हुए हैं, ठीक है, अगर वहां पर नेगेटिव एनर्जी चल रही है तो हमारा भी माइंड और हमारी बॉडी उस माहौल के अनुसार चीजों को करेगी। बट अगर हम वहाँ पे अपनी एनर्जी लेवल को एक अच्छे रूप में लाते हैं तो हमारी बॉडी कहेगी कि हाँ चलिए इस काम को एक अलग तरीके से किया जाए। और टी फॉर टेम्परेचर, यानी जो टेम्परेचर एंड टॉक, अगर हमारी बॉडी एक अच्छी टेम्परेचर के अनुसार काम कर रही है तो, और हमारा उसके अनुसार हमारा बोलने का तरीका है, तो हमें गॉबलेट फॉर्मूला को अपनाना चाहिए हो सके तब, क्योंकि हमारा लाइफ यानी मेरा जो है ना, ये जो पूरी की पूरी जो स्क्रीन है, अगर मैं इसको एक एक वर्ड में एक्सप्लेन करूँ तो मेरे ख्याल से ये मीटिंग काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आता हूँ अब यहाँ पे एटीएम मीन हुआ कि एनी टाइम मेडिटेशन, क्योंकि या एक्शन टैक्टिक इन माइनस अटैचमेंट। अगर हम लोग कोई भी एक्शन लेते हैं, अगर हम उस एक्शन से अपने आप को अटैचमेंट नहीं करेंगे तो चीजें हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। एंड नाइस एंड फॉर न्यू, आई फॉर इंटरेस्टिंग, सी फॉर चैलेंजिंग और ई फॉर एक्साइटिंग। अगर हम नाइस फॉर्मूला को कभी भी अपना ले, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में, अगर वो सिचुएशन हमारे अंतर्गत है भी या नहीं भी है, अगर हम उसे न्यू, इंटरेस्टिंग, चैलेंजिंग और एक्साइटिंग चीज के रूप में लाते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें तुरंत मिल जाएगा। फिर ये था www डॉट का हम लोग एक फॉर्मूला बनाते हैं, वेट एंड वॉच, विलिंगली वेलकम एंड विदाउट जजमेंट, गुड या बैड। मतलब देखिए, अगर हमारे सामने कोई भी चैलेंजेस आ जाए, क्या हुआ रहने दो कपड़े घर पे, तो क्योंकि देखिए वेट एंड वॉच, तो क्योंकि हमारे जो भी समस्या है वो तो हमारे सामने है, हमें उसे देखना है, उसे समझना है, और बिना जजमेंट के, मतलब अच्छी या बुरी है उसको देखनी है और बोलना कि भैया आप आइए और चले जाइए। ये चीजें बहुत ही यूनिक है। फिर एक था ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड, क्योंकि अगर हम मानते कि हमारी बॉडी काम कर रही है, अगर अभी भी काम कर रही है, अगर मैं अभी जिंदा हूँ, तो ये भी काफी अच्छी चीजें हैं, क्योंकि अगर इस चीजों को अपनाया जाए तो हर चीजें हमारे लिए सीखने लायक है, राइट।
और फिर था एक KKMLA, जो कि काफी यूनिक फॉर्मूला है मेरे लिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि K फॉर क्रोध, K फॉर काम, M फॉर मोहमाया, L फॉर लोभ, एंड A फॉर अहंकार। अगर हम लोग KKMLA फॉर्मूला को एक एक काफी अच्छे रूप में देखते हैं तो बहुत ही हमें यह चीज मिल जाएगा कि दुनिया में जो भी चीजें हैं वो मोह माया के अंतर्गत आती है। ये बी सॉफ्ट पे एक बहुत बहुत बड़ा फॉर्मूला है, जो कि नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगा या बता दूंगा। फिर SOS, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में। एस फोर फर्स्ट एस फोर हो गया सैडनेस, O फॉर ओवर थिंकिंग, एंड S फॉर सीरियसनेस। क्योंकि हमारी जो भी प्रॉब्लम है वो इस पर ही मिलता है, क्योंकि हमारी जितनी भी माइंड की पावर है वो या तो किसी नेगेटिव चीज के पीछे भागकर ओवर थिंकिंग करती है, और जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो हम लोग उस एक सीरियस वाली माहौल में चले जाते हैं। और फिर नीचे की टॉपिक है कमिटमेंट, कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन। अगर हमने खुद से कमिटमेंट किया है कि हाँ मुझे ये काम करनी है, मुझे हाँ किसी भी चीज को करनी है तो करनी है। फिर है कंसिस्टेंट, मतलब हमने कमिटमेंट किया, उसको लगातार फॉलो किया और डिसिप्लिन के साथ किया। अगर हम इस तीनों को एक अच्छे रूप में निभाते हैं तो चीजें हमारे हाथ में होगी। फिर एक आप देख रहे होंगे, आई एम द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड, जो कि काफी यूनिक चीज है। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि हमारे अलावा इस दुनिया में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि हमें जान सके। हमारे अंदर में कोई भी व्यक्ति हमें बाहर से जानता है और हमारे थॉट प्रोसेस के अनुसार। और अगर हमारे थॉट प्रोसेस से अगर यूनिक है तो कुछ ही व्यक्ति हमारे आसपास आएंगे जो कि उन थॉट को पकड़ सकते हैं, जो कि अच्छे तरीके से उस थॉट की बारीकियों को जान पाते हैं। ओके, फिर एक है माफी लो, एक माफी दो, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। क्योंकि मेरे ख्याल से माफी लेनी और माफी देने वाली चीजें बहुत ही आसान है। अगर हम लोग दिमाग में हमेशा ये चीजें रखेंगे कि उस पार्टिकुलर आदमी ने हमें ये कहा था, उस आदमी के कारण मेरे साथ ये हुआ, या मेरे कारण उस आदमी को ये प्रॉब्लम हुआ, तो मैं इस चीजों को हमेशा अपनाता हूँ। माफी लो, मतलब सामने अगर मेरी गलती है तो सामने वाले से माफी मांग लो, अगर सामने वाले की गलती है फिर भी माफी मांगकर वहां से निकल जाओ। फिर है 8W, जो कि आप देखते होंगे, सुनिए 8W के पहले यहाँ पे जो 4 है, एक है सन, एक है चांद, एक है बैलेंस, एक है कंफ्यूज। तो हम लोग अभी कंफ्यूज मुखी है, क्योंकि हमें यह नहीं पता है कि हमारा फ्यूचर का मकसद क्या है। तो हम कंफ्यूज मुखी से बैलेंस की ओर जाते हैं। जब हम बैलेंस हो जाते हैं तब हम लोग देखते हैं चांद की ओर, मतलब हम चाहते हैं कि अब हमारे पास ये चीज बैलेंस में है, वो चीज बैलेंस में है, तो हम उससे और ज्यादा पाना चाहते हैं। तो हम चंद्र की ओर जाते हैं, मतलब हम उससे ज्यादा कुछ पाना चाहते हैं, एक लीडर के तौर पे काम करना चाहते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम जाते हैं सूर्यमुखी, मतलब जो कि जितनी भी टॉप लीडर है वर्ल्ड में वो सूर्यमुखी है, क्योंकि उनके पास वो ऐसी पावर है जो कि किसी भी व्यक्ति को अपने अपने अंदर कंट्रोल करने की पावर रखते हैं। ठीक है, तो क्लियर है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, हाँ, ईगल, क्लाउड्स एंड अम्ब्रेला, जो कि काफी एक अलग चीज हमें दिखाती है। मतलब ईगल है, फिर क्लाउड्स है, फिर अम्ब्रेला है। तो क्योंकि हम लोग रहते कहाँ है, हम लोग अम्ब्रेला के नीचे रहते हैं। यानी हाँ, अगर कोई ईगल होता है, अगर कहीं पे पानी पड़ रही है तो वो ईगल क्या करता है कि उस बादल के ऊपर जाकर उस चीजों को देखता है, यानी ऑब्जर्व करता है कि नीचे क्या चल रहा है, तो चलने दो। क्योंकि हम लोग का जो भी थॉट प्रोसेस है वो बादल है,
और जो भी बादल की बूंदे गिर रही है वो है हमारी एंजाइटी, फियर और डिप्रेशन और बहुत सारी चीजें, मतलब ऐसी वैसी चीजें जिससे कि हम लोग अपने आप को जोड़ लिए हैं। और अगर हम उस चीजों को से बचना चाहते हैं तो या तो हमें बादल के ऊपर जाना पड़ेगा, या तो अपने लिए एक छाता ले लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर वो चीजें आएगी तो हमें डिस्टर्ब करेगी, और डिस्टर्ब करेगी तो हम लोग फिर उस चीजों से अटैचमेंट होकर अपने आप को प्रॉब्लम पे ले आएंगे। और एक है HW, जो कि नहीं सॉरी, उससे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे, हॉप को, HOPE, हॉप, जिसे कि हम लोग कहते हैं आशा। अगर हम लोग एज फॉर हेल्पिंग करते हैं, मतलब दूसरे की हेल्पिंग करते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, तो हमें नई चीजों सीखने को मिलेगा। और फॉर ऑप्टिमाइजिंग एटीट्यूड, मतलब यानी ऑप्टिमाइजिंग एटीट्यूड वही हो गया कि किसी भी चीज को अच्छे से रिप्रेजेंट करना। P फॉर पावर ब्रीदिंग, अगर हम पावर ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा बॉडी हमारी कंट्रोल में रहता है। E फॉर इन इन इसे कहते हैं इन मतलब इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, बट मैं उसका नाम नहीं सुन पा रहा हूँ, मुझे मालूम हो रहा है। बट ई फोर एक ऐसी चीज है, अगर हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमें वहां पर पूरा का पूरा फोकस रखना चाहिए। सो ये चीजें काम करती है। और उसके बाद हमें देखना पड़ता है आई कैन डू इट, जो कि एक बहुत ही यूनिक फॉर्मूला है, यानी यूनिक नहीं, फिर भी बहुत बहुत फेमस है। तो ये चीजें बहुत ही अच्छी है। आई कैन डू इट मतलब ये चीजें मैं कर सकता हूँ, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता हूँ, तो बट मैं वहाँ मानता हूँ कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। और मैं जब भी किसी भी बातों को बोलना चाहता हूँ तो मैं एक पहली स्माइल करता हूँ, क्योंकि किसी भी महान व्यक्ति को आप देखिएगा तो उसका जो सबसे यूनिक चीज है वो स्माइल करने का तरीका है। ठीक है, फिर स्माइल स्टेज मतलब बॉडी को एक ऐसा रूप में लाना है कि वो अपनी बातों को बोल सके, फिर वो थैंक यू अंतिम में कहता है कि जब उनकी बातें खत्म हो जाती है। अभी जाओ, कुछ काम हो रहा है, अभी कुछ काम है, जाओ। ठीक है, सो ये चीजें थी। और सो मैं आज का इतना ही टॉपिक। ओके, सो थैंक यू। हेलो एवरीवन। जी थैंक यू अमित, आपका टॉपिक काफ़ी अच्छा था ह्यूमन माइंड के ऊपर, और आपने काफ़ी कुछ अच्छी और इंटरेस्टिंग बातें बताई थी। पर 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 ये जो आपने प्रेजेंटेशन बनाई है, ये काफ़ी डिफरेंट टाइप की प्रेजेंटेशन थी। यस, क्योंकि मुझे लगा था कि देखिए, मुझे तो पता है कि 1 करने से आसान नहीं होगा, बट अगर मैं उसको देखता हूँ तो मुझे एक चीज याद आती है कि जो भी चीजें है वो हमारे हाथ में है। अगर मैं उसे तोड़ के बताऊं भी तो वही रिजल्ट होगा, अगर मैं ऐसे भी बताऊं तो उनका रिजल्ट वही होगा। ठीक है, सो मैंने उसको अपने स्किन पे लगाया हुआ है, क्योंकि मुझे ये पता रहेगा कि रियल पावर क्या है और हमें किस समय क्या एक्शन लेना चाहिए। तो इस कारण से। जी ओके। तो अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अमित से पूछ सकता है। राहुल, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप अमित से पूछ सकते हो। No any very question. No any question. ठीक है। तो अब हमारा ये प्रेजेंटेशन इवेंट यहीं खत्म होता है, और आप सभी का इस प्रेजेंटेशन इवेंट को ज्वाइन करने के लिए थैंक्स। और ये
काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन इवेंट था, काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशंस थी। तो अब हम इस सेशन को यहीं एंड करते हैं और आप सब इस हेलो सर, मीटिंग को अब लेफ्ट कर सकते हो। सर एक सेकेंड। हेलो सर,